قیامت کا دن آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. آخر قیامت کا دن کیسا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, اور یہ قیامت کا دن کیسا دکھے گا؟ اس دن کچھ انشٹ ہوگا, کچھ اچھا ہوگا, کوئی لڑائی ہوگی, کوئی خون خرابہ ہوگا, اور کب آئے گا یہ قیامت کا دن؟ انہی سوالوں کا جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں, ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر محمد یونس صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ سچوالا صاحب ہیں. محمد یونس صاحب, کیسا ہوگا قیامت کا دن, کیا ہوگا قیامت کے دن میں؟ اس کو لے کر بڑی ساری باتیں ہم سنتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہے, پڑھتے ہیں, اسکالر ہیں, آپ لوگ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن؟ دیکھیے, اسلام میں اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کی عدالت میں ہم سے پیش ہو جائیں گے, اور ہمارے اچھے اور برے عمل کا حساب و کتاب ہوگا. جو ہم نے اچھائیاں کی ہیں تو اس پر ہمیں انعام دیا جائے گا, اور اگر ہم نے غلط کام کیے ہیں تو اس پر ہمیں سزا ملے گی. اور جنت اور دوزخ کا تصور ہے جس کو سورگ اور نرک بولتے ہیں. اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی, اور اگر ہم نے برے عمل کیے ہیں, اللہ کے قانون کو توڑا ہے, تو ہمیں نرک ملے گی. یہ اسلامی عقیدہ ہے. قیامت کب آئے گی, ایک سوال تو یہ ہے, اور قیامت کس طرح آئے گی. قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. البتہ اس کی کچھ علامات, اس کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی تھیں, اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں, یہ علامتیں ہیں. جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے. تو قیامت یقیناً آئے گی, یہ اسلامی عقیدہ ہے, ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, اور یہ ہمارا لازمی عقیدہ ہے. اگر ہم اس عقیدے سے پھرتے ہیں تو ہم اسلام میں سے نکل جائیں گے. تو قیامت تو یقین, اور اس بات کو موجودہ سائنس بھی مانتی ہے کہ اس دنیا کا وناش ہونا ہے, یہ دنیا ختم ہونی ہے. موجودہ سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو قیامت آ کر رہے گی, تو قیامت کس طریقے سے آئے گی, پوری دنیا فنا ہو جائے گی. یعنی انسانی وجود ختم ہو جائے گا دھرتی سے؟ ہاں, انسانی, یہ پوری دنیا ختم, جی سب ختم ہو جائے گا. پوری دنیا فنا ہو جائے گی. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ جھیل, یہ جھرنے سب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور دوبارہ زندہ ہو کر سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اللہ کی عدالت لگے گی, اللہ اپنی عرش پر بیٹھیں گے, اور تمام انسانوں کو جمع کر کے ساری جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. جو چور ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے, جو نیک لوگ ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے, جو بدکار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو زندہ کرے گا, یا جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں دنیا میں ان کو سب کو زندہ کر دے گا؟ سب کو زندہ کرے گا, سب کو. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہو جائیں گے, سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. قیامت کا دن کیا ہوگا؟ کیا اس وقت کچھ جنگ ہوگی جب قیامت آئے گی؟ کوئی پراکرتک آپدہ آئے گی؟ آپ نے جتنا اسلام کو پڑھائے جانا ہے, کیا ہے یہ قیامت کا دن؟ دیکھیے, قرآن میں یوم القیامہ یعنی کھڑے ہونے کا دن, یہ لفظ, اچھا میری آواز ایکو ہو رہی ہے, کھڑے ہونے کا دن, یوم القیامہ کا مطلب ہے کھڑے ہونے کا دن. اچھا, یہ بات قرآن میں 50 بار ریپیٹ ہوئی ہے, لیکن کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کب ہوگی اور کس طرح سے ہوگی. اس کی ڈیٹیل جو ہے قرآن میں نہیں ہے. اب قرآن کے باہر والی کتابوں میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میری آواز ایکو ہو رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل درست آ رہی ہے ہمیں. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب, آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹینشن لیجیے, بولتے رہیے آپ. جی, یہ ٹینشن مجھے نہیں ہے, لیکن لگتا ہے کچھ اور معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں یوم القیامہ کا لفظ 50 بار جو ہے وارد ہوا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل یہ کب ہوگی اور یہ جو نشانیاں ہمارے مولانا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے, کچھ نہیں کہتا. جو کچھ باتیں ہمیں ہمارے مولوی حضرات کی طرف سے سننے کو ملتی ہیں, ان سب باتوں کے معاملے میں قرآن بالکل خاموش ہے, کچھ نہیں کہتا. اور میں یہ بھی جو ہے مولانا صاحب سے سوال کروں گا کہ دنیا میں لگ بھگ 80% آبادی, دنیا کی 80% جو ہے جو پاپولیشن ہے وہ دراصل اسلام کو نہیں مانتی. تو اللہ جو ہے ان کو بھی زندہ کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا. جی فرمائیے. یونس صاحب جواب دیں.
वो कह रहे हैं कि ना तो जो निशानियों की बात आपने की है कोई ऐसा कहीं जिक्र है, देखिए ये सचवाल, गलत बयानी थी आपकी, और दूसरी बात भी उन्होंने कहा है। अरे वो मैंने बचपन में एक किस्सा सुना था, एक बच्चा जाने लगा कि अम्मा कुश्ती लड़ूंगा जाके, तो उसकी माँ ने कहा बेटा हार जाएगा, तो उसने कहा मैं हार मानूंगा ही नहीं। तो सचवाला जी उसी कबील से हैं, कहते हैं भैया हार मानूंगा ही नहीं, चाहे कितनी दलील दे दो, ना मानने का मारे घुटना फूटे सर, इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। कुरान पाक में 143 मरतबा क़यामत का जिक्र है एक तो, और कुरान पाक के हर पारे में अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है। या अय्युहन्नासु इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कि जो क़यामत का ज़लज़ला होगा एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। तो इस आयत करीमा में क़यामत का जिक्र है कि क़यामत कायम हो जाएगी, लोगों पर एक तरह की मदहोशी तारी हो जाएगी, ऐसा लगे जैसे लोग नशे में हैं, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि वो क़यामत का दिन होगा और लोग क्या हैं, सब क्या हैं, फना हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला सबको दोबारा जब चाहेगा ज़िंदा करेगा और फिर उनसे हिसाब किताब लेगा कि मैंने कायनात बनाई थी, मैंने दुनिया बनाई थी, तुमने दुनिया के अंदर जाकर क्या किया, तुमने कितने अच्छे अमल किए हैं, कितने बुरे अमल किए हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में सवाल होगा डिटेल से। उसके बाद कुरान पाक ये कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सचवाला जी बहुत दावा करते हैं मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा, बहुत उछल उछल के कहते हैं, ज़रा इनसे पूछो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा राई समझते हैं, राई सरसों के दाने के बराबर भी कोई अच्छा अमल करेगा तो उसको अल्लाह के वहाँ मौजूद पाएगा, और अगर कोई राई के दाने के बराबर भी बुरा अमल करेगा उसको भी मौजूद पाएगा। यानी अगर कोई बंदा इनकार करेगा कि भाई मैंने काम नहीं किया है, अल्लाह ताला फौरन स्क्रीन पर चलाकर दिखा देगा, देखो जी ये काम तुमने फला मौके पर किया था, ये काम तुमने फला मौके पर किया था और तुम आज इनकार कर रहे हो। तो अच्छा, अब इंसान ये सोचेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, जब आज के इंसान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो ऐसी चीज़ रिकॉर्ड में ला सकता है जो 100 साल के बाद देखी जा सकती है। 100 साल ये उलमा लोग जब इससे पूछा जा रहा है कि कुरान से बताइए कि ये कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, एक भी आयत दिखाइए या एक भी बात सुनाइए, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाते। ये है मुल्ला की हालत। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुल्ला से दूरी अल्लाह से करिए, कुरान को मजबूती से थाम लो और उसको समझो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो ईमान लाएं अल्लाह की आयत पर, पैरवी करें कलाम पाक की, मुल्ला से दूरी अल्लाह से करें। 100 साल पहले के मैच आज दिखाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो इस कायनात को बनाने वाला है, जिसने इंसान को बनाया, इंसान को दिमाग दिया, तो उसके पास इससे ज़्यादा हाई टेक्निक है कि जो इंसान दुनिया के अंदर कर रहा है वो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के वहाँ अपने सारे अमलों को मौजूद पाएगा। और सचवाला जी के कहने से कुछ भी नहीं होता है, पूरी दुनिया का साइंस भी इसको तस्लीम करता है, नासा के साइंसदान भी तस्लीम करते हैं कि एक ना एक दिन इस दुनिया का विनाश होना है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, हिंदू धर्म भी इसको तस्लीम करता है, एक ना एक दिन इस दुनिया का विनाश होना है, ये दुनिया खत्म होनी है। नहीं, ये इस कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन एक जैसे आप बार बार साइंस का हवाला दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यूनुस साहब कि कोई तो है, कोई मौलाना आया है मेरे शो पे, कोई इस्लामिक स्कॉलर आया है जो साइंस में इतना बिलीव करता है। लेकिन जब बात आती है फिल्मों में काम करने की, जब बात आती है सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की, तब उस साइंस को मौलाना मौलवी मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हराम है, ये गलत है। तो मतलब साइंस का साइंटिफिकली आप लोग यूज करेंगे, साइंटिफिकली देखिए मैडम, असल में बात यह है कि हम मुसलमान हैं और हमारा एक दायरा है जो अल्लाह ने हमारे तय कर दिया है। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और अल्लाह ने एक दायरा तय कर दिया है। उस दायरे से में बात यह है कि हम मुसलमान हैं और हमारा एक दायरा है जो अल्लाह ने हमारे तय कर दिया है। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और अल्लाह ने एक दायरा तय कर दिया है, उस दायरे से हमें बाहर नहीं जाना है। इसी चीज़ का नाम इस्लाम है, इसी चीज़ का नाम ईमान है। अल्लाह ताला ने हमें जिन चीज़ों की इजाज़त दी उसको मान लेते हैं, जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी उसको नहीं मानते। कुरान साइंस की वो बात जो कुरान से न टकराए, कुरान के देखिए मैडम कुरान की वो बात जो साइंस की वो बात जो कुरान से टकराती नहीं है हम उसे मानेंगे, ठीक है। लेकिन कुरान की वो बात जो साइंस की वो बात जो कुरान से टकरा रही, कुरान के खिलाफ है, हम उसको नहीं मानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको साइंस ने बाद में प्रूफ किया है। देखिए एक वक्त था साइंस ये कहती थी कि दुनिया गोल नहीं है, जबकि कुरान ने इस बात को कहा है कि दुनिया गोल है। लेकिन आज क्या है, पूरी दुनिया की साइंस इसको मानती है कि दुनिया गोल है।
मेडिकल साइंस ने इस पर क्या है रुजू किया। ऐसी कुरान में कहाँ कहा है दुनिया गोल है? कुरान कौन सा में वो लिखा है है कि दुनिया जिसने- गोल है सर, मैं ये बात जिसकी- कहना नहीं चाह रही थी। कोई एक आयत पेश करें, कोई एक आयत पेश करें तो फिर ये जिसमें जमीन चपटी को गोल दुनिया कहा की गया है। बातें क्यों घूम फिर कर आ जाती हैं साहब? कोई एक आयत पेश करें जिसमें जमीन को गोल कहा गया है। जी एक आयत पेश करें, एक आयत पेश करें देखिए, जिसमें हाँ, मैं जमीन इस को गोल कहा पर गया है। वक्त मेरे जहन में आयत नहीं है। आपके पास जहन में फोन नहीं है, गूगल कर लीजिए सर। देख मैं इस पर आपको एक आयत पेश करें जिसमें जमीन को गोल कहा गया है, एक आयत। पहली बात तो ये कि इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है यौमुल क़ियामा। जिस तरह से मैंने अर्ज किया, कुरान में यौमुल क़ियामा 50 बार वारिद हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे साथ मोहतरमा पिनास तियागी बैठी 143 हैं। मरतबा, ये- 143 मरतबा। अरे जनाब आली, मैं कह रहा हूं कि एक आयत पेश करें ना, एक आयत जिसमें जमीन को गोल कहा गया है, जमीन को गोल कहा गया है। कुरान का लिखने वाला जमीन के गोल के होने आप के ये बारे कह रहे हैं में कुरान में नहीं रखता 50 था। मरतबा, मैं आपको ही बता रहा हूँ, अरे एक मैं आयत आपको ही पेश चलिए बता तो रहा जब हूँ, आप कुरान गूगल करके ये कुरान बता पाक सकते हैं कि में 143 मरतबा, तो 143 गूगल मरतबा। करके ये भी बता दीजिए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि धरती गोल है। इन द मीनवाइल सचवाला साहब कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो उन्हें पूछ लेने दीजिए, आप गूगल देखिए कीजिए। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये इस वक्त मैडम, जो है गूगल- टॉपिक नहीं है, और मौलाना के पास गूगल- ये क्या मौलाना के चलिए। बड़े मौलाना भी आकर जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप सवाल मैं पूछिए। असल में ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे साथ इस वक्त पिनास तियागी मोहतरमा बैठी हैं। ये क़यामत के दिन इनके साथ क्या होगा, इसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। पिनास तियागी के क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा? मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा कयामत के दिन? अरे भैया, अरे तो आपके धर्म में क्या है? आप अपने धर्म को मानो ना। आपके धर्म में क्या, आप देखिए आपके धर्म में क्या है इस बारे अभी में। तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, मैंने जब आपसे पूछा तो आपने मुझे कहा था कि कयामत के दिन सब लोगों के साथ जो है, सब लोगों के साथ एक जैसा होगा। मैंने आपसे पूछा कि मुसलमान ही या पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों के लोग भी? आपने कहा सब। नहीं, अगर भाई कयामत का दिन आएगा, धरती का वजूद नहीं बचेगा, तो मेरा वजूद कैसे चलिए, बचेगा? अगर मैं नहीं मैडम, सब खत्म हो जाएंगे तो यकीनन है, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी बताई हुई बात पर आप अमल करेंगी, मान लेंगी, तस्लीम कर लेंगी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आप भाई, तो अपने आपने धर्म को कुरान मानेंगे में ना, कहीं मुझे लिखा होगा ना मानेंगे। कि कयामत के दिन जो है दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या होगा? सचवाला साहब, आपने पहले तो बताया था, अब आप बैक ट्रैक करना चाहते हैं, बात अलग है। पहले आपने कहा था कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, वो खत्म हो जाएगा जैसे सब इंसान खत्म हो गए। सचवाला साहब, आपकी नजर में क्या होगा? आपने मैं इस्लाम, यही तो जानना चाह रहा हूँ ना। देखिए, दुनिया के 80% लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके साथ क्या होने वाला है? भाई दुनिया और खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएंगे ना। उन्हीं में से एक हैं, इनके साथ क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, मैडम- यूनुस साहब कह रहे हैं जब सब खत्म होंगे तो ये दुनिया मैडम खत्म सॉरी, होगी। मैं हाँ। सुनिए, हाँ, सचवाला साहब वो कह रहे हैं जब दुनिया ही खत्म हो नमाज जाएगी का तो टाइम फिर हो रहा है। कौन बचेगा? जी सब खत्म हो जाएंगे, सब। हजरत गूगल अलैहिस्सलाम पर जो है सचवाला एतमाद साहब भी करके और हम भी। आयतों को निकालिए। आपका एतमाद ईमान जो है हजरत गूगल अलैहिस्सलाम पर है। जी। गूगल कीजिए, हजरत गूगल अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत कीजिए, जनाब उनसे मदद तलब कीजिए। और जो है मेरे सवाल का जनाब जवाब गूगल दीजिए। अलैहिस्सलाम पर आपका ईमान होगा, आपका ईमान। नहीं, मेरा कोई हमारा नहीं ईमान है। मोहम्मद देखिए, ईमान जो रसूलुल्लाह है एक सल्लल्लाहु अलैहि अंधेरा है, वसल्लम मेरे पर है। नज़दीक ईमान एक अंधेरा है, और मैं अंधेरे में आपका नहीं क्या हूँ। है? आपका क्या है? आपका क्या है? मैंने जो सवाल ईमान नहीं तो क्या है आपके पास? क्या है? कुछ तो होगा। मैंने जो कुछ सवाल क्या है आपके पास? ईमान नहीं तो क्या है आपके पास? चूचू का मुरब्बा आपके पास? मेरे भाई, जनाब, क्या आपके पास क्या है? चलिए, ईमान नहीं तो क्या है? मेरे पास तो ईमान है। आपके पास क्या है बताइए? नहीं, क्या है ये बताइए, आपके पास है क्या? मेरे पास नहीं, मेरे पास तो ईमान है। आपके पास क्या है? 80% लोग सुन आपके पास क्या है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास तो ईमान है। हो रहा है, ये क्रॉस आपके पास क्या है बताइए? मेरे पास तो ईमान है। मेरे भाई, आप बताइए, आपके पास है क्या? अरे मेरे भाई, आप पहले आपसे जनाब, 1 लाख गुना बेहतर है। सचवाला साहब, आपसे सचवाला 1 लाख साहब। गुना बेहतर है। मैं जो सवाल कर रहा हूं मेरे उसका पास- जवाब दीजिए। अरे जनाब, सुन तो क्या? लीजिए। आप सवाल क्या से मुकर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब, से मेरे पास कतरा तो रहे ईमान है। हैं। आपके पास क्या सवाल है? का जवाब देने आप से क्या मानते से हैं? कतरा रहे हैं। किसी अरे किसी नहीं सवाल से क्यों बता रहा हूँ? आप 50 सवाल कीजिए। आप जैसे पता नहीं कितने आते हैं मेरे पास सवाल करने वाले। अरे जनाब यार, सबके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। अरे सबके यूनुस सवाल का साहब, जवाब अगर दीजिए। कोई एक बात सुनिए ना, अगर आप ये- कोई नहीं, एक मैं बात सुनिए बताइए। ना, जरूरी नहीं है ना किसी देखिए, शख्स को सवाल मैंने करने के इनसे लिए ये किसी पूछा- धर्म को मानना देखिए जरूरी होता मैडम, है। आप भी देखिए गीता मैडम, पढ़ मैंने के, इनसे पूछा। आप भी गुरु ग्रंथ भैया, साहिब पढ़ के उस पर मेरे सवाल कर पास- सकते हैं।
ایک گرنتھ کو پڑھنا بھی اپنے آپ میں اس کی میرے جانکاری ایک حاصل سوال کرنا کا جواب نہیں دے ہے. رہے. یہ یہ دھرم کیا ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے اللہ کے نہیں بھائی، پاس میں تو میرے اس یہ کہہ سوال رہے ہیں کا کہ